Hello students, power sharing chapter. The topic is accommodation in Belgium. You know students, we have to study in the about the Belgium and Sri Lanka, यानी both country, कि how division of the population and how powers divided into the groups in the social groups in both country. Firstly, here is accommodation in Belgium. Accommodation means students agreement, समझौता, यानी what type of agreement in Belgium. Students, you know very well, Belgium यानी two groups in the country. First is Dutch and other is French. Other is French and some German speaker. Students, but there is 1% Dutch in 59% and French is 40% students in the country. अब here is but power division equal in the country. Belgium leaders took a different path like a Sri Lanka, like a Sri Lanka नहीं, different path from the Sri Lanka, because here the diverse, it is a diverse culture in the Belgium, and between 1970 and 1993 there are 4 times change amendment, यानी जो amendment था यानी 4 टाइम change, it means amendment their constitution, यानी constitution 4 times change, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको 4 बार उसको चेंज किया गया कि कैसे करके लोगों को इक्वल पावर दिए. Not there is no matter how is the percentage of the population. There are the minority groups and Dutch is the majority group. No matter can the students constitution prescribes, यानी जो constitution था वो उसको prescribes किया कि that the number of the Dutch and French speaking ministers should be equal, यानी when the form the government, यानी जब गवर्नमेंट फॉर्म की the ministers should be equal in both groups, यानी दोनों ग्रुप्स के जो क्या होंगे मिनिस्टर्स होंगे वो इक्वल होंगे इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी मिनिस्टर्स should be equal in central government. ओके स्टूडेंट्स, यानी मिनिस्टर जो क्या होंगे वो इक्वल होंगे, कम यानी परसेंटेज कम ज्यादा से मैटर नहीं करता, तो मिनिस्टर शुड बी इक्वल. अब सपोर्ट द मेजॉरिटी मेंबर्स, यानी the special law required the support of the majority of members from each linguistic group. जो linguistic group थे उनके लिए क्या किया, majority of member support, but students thus सबको equal right दिए गए, thus no single community can make decisions unilaterally, यानी कोई भी यहाँ पर एक अकेली जो कम्युनिटी है वो कोई डिसीजन नहीं ले सकती, इसलिए कि दोनों ही जो ग्रुप हैं फ्रेंच एंड डच दोनों ही मिलके कोई भी डिसीजन लेंगे. नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट पॉइंट था कि मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट. अब कुछ जो पावर थी जैसे पावर्स
powers given by central government, central government to state government. Powers given by central governments to state government. अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर कुछ पावर्स थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को दी, एंड नो इंटरफेयर, नो एनी टू रीजन्स ऑफ द कंट्री गवर्नमेंट, टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड पावर्स डिवाइडेड बिटवीन बोथ गवर्नमेंट. But students, the state government are not interfere. The state government are not subordinate, not subordinate to the central government. यानी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके अधीन नहीं है, उसके अंतर्गत नहीं आती, वो अपने टाइप से वर्क करती है. स्टेट गवर्नमेंट अपने टाइप से वर्क करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने टाइप से वर्क करती है. यानी ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करती है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कि जब ब्रसल्स, अब जो उनकी क्या थी, कैपिटल ऑफ बेल्जियम, कैपिटल ऑफ बेल्जियम. इन ऑल कंट्री these type of peoples are divided, but in a capital, any opposite of this, Dutch in the majority in the central government and French is the minority in the central government. But here is French is the majority in Brussels and Dutch in the minority in the Brussels. यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में मेजोरिटी या माइनॉरिटी में थे वो यहाँ पर आके एकदम एक दूसरे के अपोजिट हो गए. बट यहाँ पर भी जो पावर्स थी बोथ कम्युनिटी को, यहाँ पर भी पावर्स क्या हुई, पावर्स डिवाइडेड इक्वली. जो पावर्स थी वो यहाँ पर भी इक्वली डिवाइडेड कर देंगे स्टूडेंट. एंड नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अपॉन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट. यानी इसके बाद अब दस द कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल. कम्युनिटी गवर्नमेंट स्टूडेंट्स, यानी थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट कम्युनिटी गवर्नमेंट, क्योंकि वहां कम्युनिटी गवर्नमेंट elected by the people, elected by the people, elected by the people. अब here students, Dutch, French and German speaking, Dutch, French and German speaking are three types of here students type of Brussels. In the Brussels students, यानी belonging to the one language community, Dutch, French and German speaking students here, no matter where they live and no matter where they live, ये कोई मैटर नहीं करता वो कहाँ रह रहे हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन रह रहे हैं, ब्रसेल्स यानी कैपिटल में गवर्नमेंट है उसके अधीन रह रहे हैं, वहां पर ये सब क्या है, दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज. जो एजुकेशन थी यानी सब कुछ क्या था, सेम था, इक्वल थे, नो मैटर, कोई भी डिफरेंस नहीं था स्टूडेंट्स. सो बेल्जियम मॉडल इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बेल्जियम मॉडल इज बेल्जियम मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड. इट इंडीड इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर पीपल लिविंग इन बेल्जियम. बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था ये, जो लोग बेल्जियम में रहते थे. बट अपोजिट इन श्रीलंका यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल. श्रीलंका गिवन द पावर टू द मेजॉरिटी पीपल्स, यानी उसने उनको पावर दी, उनको उनके प्रति डिसीजंस दिए जो मेजॉरिटी में थे. जैसे सिनाला वहाँ मेजॉरिटी में थे और ये क्या थे, ये अब यहाँ पर बेल्जियम में क्या किया कि पावर सबको इक्वल दी गई, नाइदर मेजॉरिटी एंड नॉर माइनॉरिटी. वहाँ मैटर नहीं करता कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी में कौन है. बट श्रीलंका में क्या किया गया कि जो मेजॉरिटी में था
उसके यहाँ पर क्या था कि उनको पावर्स दी गई, उनको रिलैक्सेशन दिया गया, चाहे वो जॉब्स हो या अदर सिस्टम हो, ऑफिशियल वर्कर हो। इसीलिए वहाँ पर श्रीलंका में तमिल जो थे उन्होंने सिविल वार कर दिया था। बट बेल्जियम में कोई भी किसी भी टाइप की हैपनिंग नहीं हुई। ये क्या था, दोनों में डिफरेंस था। यानी कैसे करके हम किसी कंट्री को हेल्प करते हैं कि वहाँ पर कोई भी मतलब स्ट्रगल कोई व्यक्ति ना करे, सिविल वार ना करे, लड़ाई झगड़े ना करे। डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर बेल्जियम में नहीं किया गया और श्रीलंका में लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव किया गया था। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।